ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी वाहू दे. आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे. ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी वाहू दे. आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे. आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे. लक्ष्मीच्या हातातली चौरी व्हावी वर खाली. लक्ष्मीच्या हातातली चौरी व्हावी वर खाली. इडा पिडा जाईल आई कृपा तुझी भातातल्या सुरासंग गाऊ दे. आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे. ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी वाहू दे. आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे. आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे. Hi everyone, welcome to another episode. Today we have another guest, a very special guest who will narrate a new story to us. I met Vismay when I joined my first office after college, and immediately we connected because I found out that he is an artist himself. Apart from working, he's a great flute player. Like he has a few compositions of that he has created, and they're just mesmerizing. I've listened to them, and I feel so blessed. Hi Vismay, welcome to our podcast. Hi. Hi, hello. So, विस्मय कुछ बोलना चाहोगे अपने बारे में? अपने बारे में बोलने से it is actually a great concept that you are putting forward. So basically regional folklore इतना ज़्यादा है. There is so much regional literature available, or it is so rich and enormous कि it should reach out to people. It does not happen as much it is needed. So this is a great concept. And secondly, तो मेरे बारे में, so I like reading regional literature more than like bestseller, international bestsellers या फिर other books like जो भी Robin Cook या फिर Murakami kind of. So I don't prefer reading them that much. So on those lines, I think we have connected really well. What do you think? Why वैसे? If I ask you a reason कि why not Murakami, or why not the tales from other countries जैसे लोग पढ़ रहे हैं आजकल, why not? I won't say they should not read as such, but क्योंकि they don't belong to the land, right? तो जो values that the authors from Indian authors bring into their books are more easily connectable to the people who belong here, rather than someone who's sitting in Japan or someone who's writing from Geneva, Venice, or US for that matter. Yeah, exactly. And I feel that what you're saying ना, whenever I read anything from Hindi literature, या फिर अगर मुझे पता है कि वो ऑथर वहीं का है जहाँ से मैं हूँ, तो आई डोंट नो, कुछ होता है एक, वो कहते हैं मिट्टी की खुशबू, वो सही में आती है टेक्स्ट में से. सो इसमें कौन सी कहानी लाए हो आज? तो दिस स्टोरी इज फ्रॉम माय चाइल्डहुड. तो वो चाइल्डहुड में बचपन में किताबें मिलती है ना बच्चों की कहानी वाली. तो उसमें देयर इज ओवरऑल दे ट्राई टू बिल्ड आउट योर वोकैबुलरी, एंड देयर आर सम बेसिक मॉरल्स दैट दे ट्राई टू इम्बाइब थ्रू दी स्टोरीज. जैसे अकबर बिरबल वाली होती है, या फिर पंचतंत्र की होती है काइंड ऑफ. सो दिस वन इज फ्रॉम दैट. सो इट इज अ मराठी स्टोरी, एंड इट इज लाइक अ पीरियड kind of story. मतलब it is not in recent past. So it is based in, like, let's say 18th century or maximum 19th century kind of backdrop पे based है. Okay. It is very simple story, but along with that they also try to bring in these elements of कि how to introduce new words to kids. या फिर there is all, मतलब अभी उसमें बोलेंगे तो there is this concept of homonyms, if you know. So these words have different meaning but the same spelling. So like bat होता है, a cricket bat, and also the animal bat. So इस कहानी में the story revolves around these type of concepts कि अभी homonyms की वजह से क्या हो जाता है. Oh, okay. And also there is this concept of coincidence that they have in the story. Okay. So there is this word in Marathi called as yoga yug.
So in Hindi, yog means, of course, yoga, and in Marathi हाँ. also it means yoga. But the word yoga yog means coincidence. So the Oh, story okay. is like how things happen around because of a chance, and Okay, okay. like they keep on happening because of and coincidence happens. ऐसे करके. Okay, okay. So कहानी शुरू होती है with a person named Todam Bhatt. So Okay. इसमें ऐसे ऐसे ही नाम आएंगे because it is totally regional Marathi. हाँ, तो okay. the letter R is not there in Hindi as far as I know. तो R L. lies somewhere between R, हाँ, somewhere between L and D. तो Oh, usually केला बोलते हैं ना हिंदी में, तो हाँ. मराठी में केड़ा बोलते हैं. Oh, तो okay. देर हाँ, तो उसका वो आदमी होता है, उसका नाम होता है टोडम भट्ट. हम्म. और उसकी नई नई शादी हुई होती है. एंड शादी के बाद वाले वो जो सब रस्में वस्में होती हैं, ऑल हाँ. दिवाली सेलिब्रेशंस, गोइंग टू हिज इन लॉज फैमिली एंड ऑल अदर रिचुअल्स, तो हम्म. वो उसके लिए उसके ससुराल जाता है. Okay. ओके. सो इसमें ऐसा होता है कि ससुराल वालों के ना, दे हैव सम नोशंस, लाइक जैसे अभी हमने जमाई सिलेक्ट किया हुआ है तो ही शुड बी स्मार्ट, तो होगा ही वो, क्योंकि हमारी चॉइस है, हमने 25 रिश्ते देख के उसको सिलेक्ट किया हुआ है. एंड सेंसिटिव होगा, ये होगा, वो होगा. अरे भाई, हाँ. हमारी चॉइस है, गलत कैसे हो सकती है करके. हाँ. ओके. तो अब होता ऐसा है कि पहले के जमाने में ज्यादातर अरेंज मैरिजेस होते थे, लव हाँ. मैरिजेस कम होते थे बहुत. हम्म. सो पीपल आर नॉट नोइंग ईच अदर दैट वेल, क्योंकि सब अच्छा. अरेंज्ड ही होता था. तो बंदा कैसा है, उसका उसके बिहेवियर कैसे है, या फिर हाउ डज ही टॉक, ये इतना मतलब उसका पता नहीं होता था. हाँ, हाँ. तो दोनों साइड से लोग एक दूसरे को कुछ दिनों तक तो आजमा ही लेते थे, मतलब अच्छे से बात करो फॉर्मेलिटी के साथ, और हाँ, एक हाँ. दूसरे को इज्जत दे दो, हाँ. ऐसे करके. तो होता ये है कि वो ससुराल जाता है, एंड हाँ. एक दो दिन के बाद रात के खाने में देयर इज अ प्लान फॉर मेकिंग चिल्लास. तो अच्छा. महाराष्ट्र में चिल्ले को धीरड़ बोलते हैं. अच्छा. ओके. ठीक है. तो ढेड़. यहाँ पे ऐसे हो धीरड़, हाँ. अच्छा, तो यहाँ धिल्ल. पे ऐसे होता है कि ऐसे प्लान बनता है कि आज रात को बनाएंगे करके, क्योंकि जो गर्मा गर्म बनते हैं, और ऐसे हमारे यहाँ पे होता है कल्चर में कि चलो बनाते हैं, तो वो बनते हैं. ठीक है. अभी जब बन रहा है तभी कुछ काम तो है नहीं, तो हाँ. टोड़म भट्ट बैठ जाता है एक जगह पे, और हम्म. पीछे किचन में बन रहे हैं वो, और सब लोग जो घर के मर्द हैं वो बैठे हैं, और किचन में औरतें दे आर कुकिंग दिस चिल्ला. तो उसके ओके. बाद ऐसे होता है कि जब वो चिल्ला पैन पे पड़ता है ना, तो उसकी चुरचुर चुरचुर आवाज आने लगती है. अच्छा. और टोड़म भट्ट को कुछ काम नहीं होता है, तो वो गिनने लगता है कि कितने बन रहे हैं करके. तो जैसे चुरचुर आवाज आती है वैसे वो गिनने लगता है. अच्छा. धिरडी तव्यावर पडू लागली आणि हम्म. जावई बापू मोजू लागले. हम्म. जरा चुरूचुरू आवाज येई तो तोळम भट्ट मोजे. शेवटी सगळी धिरडी करून झाल्यावर जेवणाची पंगत बसली. तोळम भट्ट ही खायला हौशी, चापून धिरडी खाऊ लागला. सासरची मंडळी ही आग्रहाने वाढू लागली. 3 झाली, 4 झाली, 6 झाली, 8 झाली. आग्रह अच्छा, वो संपेनाच. गिन रहा है. शेवटी टोळम भट्टाने धिरडी मोजली होती, त्यामुळे तोही जरा हिशेबाने खायला लागला. शेवटी सासऱ्याच्या अति आग्रहाचा वीट आला, आणि तो उद्गारला, बास बास पुरे, निदान सासूबाईंना चवीला तरी असू देत. सासू सासरे गहीवरले. ठीक है. तो अभी इसका मीनिंग क्या था, तो जैसे आवाज आए, चुरचुर आवाज आने, तो वो लिखा है कि जैसे चुरचुर आवाज आती वो गिनने लगता. हाँ. और उसको पसंद भी थे चिल्ले खाना, तो वो जम के खाने लगा. ठीक है. हम्म. और ससुराल वाले भी लोग उसको, मतलब ऐसे ही, ये होता है ना, दे आर ट्राइंग टू गेज हिज बिहेवियर, या फिर कैसे खाते हैं, क्या है उसको हाँ, कुछ हाँ. पता है नहीं. सो वो भी ऐसे परोसने लगते कि खाइए 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 करके, तो और खाने लगता है, खाने लगता है. हम्म. तो 3 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, लेकिन वो मतलब परोसने के लिए क्योंकि रुके ही ना कोई, मतलब वो उसको बोल ही रहे कि खाइए खाइए. उसको हमारे यहाँ पे मराठी में कहते हैं आग्रह. अच्छा. हिंदी में क्या कहते हैं, आई एम नॉट श्योर. हिंदी में भी है तो एक वर्ड आग्रह. आग्रह मतलब किसी को रिक्वेस्ट करना. हाँ. ओके. तो इतना हो गया कि वो ऊब गया, उसके ससुर के उससे आग्रह से ऊब गया, और कहने लगा कि बस बस बस, अभी इतना और खाऊंगा तो कम से कम वो सासू माँ के लिए चखने के लिए एक दो रख दीजिए करके. अच्छा. तो ओके. जो ससुराल वाले लोग थे, वो शॉक में सरप्राइज, दे टुक बाय सरप्राइज, और अच्छा. उनको मतलब इम्प्रेस हो गए कि अरे इसको पता कैसे चल गया, क्या यार, सही है, मतलब ही सो सेंसिटिव, इज सच अ जीनियस, इसको सब मतलब कैसे पता है इसको. तो दे आर अच्छा. अस्टाउंड बाय दैट. अच्छा. अच्छा. एंड फिर खुद ही पे खुश हो रहे थे कि मतलब हमारी क्या चॉइस है यार, हमने. तो वो खुद ही क्योंकि पे इम्प्रेस अच्छा. थे. तो ऐसे ही कुछ दिन और चले गए. ठीक है. हम्म. फिर हुआ यूं कि उनका घर बड़ा था, मतलब पुराने जमाने में देयर यूज्ड टू बी जॉइंट फैमिलीज, एंड हम्म. 2-3 चचा लोग हैं, एंड कोई ना कोई आता रहता है मेहमान. तो हाँ. 1-2 नौकर चाकर थे. तो किसी दिन होता है कि वो जो साली होती है ना, टोड़म हाँ. भट्ट की साली होती है, उसका कोई नेकलेस गुम हो जाता है.
तो सारे घर में वो नेकलेस ढूंढने लगते हैं कि अरे कहाँ है, यहाँ वहाँ देखा। तो पहले हाँ ऐसे यूं होता था कि जो औरतों के गहने हैं वो दे वर सपोज टू बी इन द मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द रूम, दैट इज मोस्ट अच्छा। रिमोट, कि कोई भी बाहर से आया हुआ जा नहीं पाएगा, हम्म। राइट। सो वो उसकी ढूंढने की जगह भी वो मिल नहीं रहा था। हम्म। सो फाइनली अराइव टू कंक्लूजन कि या तो चोरी हुआ है या तो पता नहीं क्या हुआ। तो इसको भी ये भी चिंता में पड़ गया कि क्या, कहाँ होगा, कहाँ होगा, कहाँ होगा, ये भी सोच रहा है। तो सोचते सोचते ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हिमसेल्फ ओनली। तो वो बोलते बोलते कुछ माला 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 बोलने लगा। तो उतने में वो जब भी सोच रहा था, तो उतने में घर की एक नौकरानी थी, वो वही आसपास ही वहीं पे कुछ काम कर रही थी। हम्म। तो उसका भी नाम माला ही था, ठीक है। तो वो उसने सुनते, काम करते करते सुनते सुनते कान पे जो भी उसके पड़ा, तो उसको लगा कि उसको मतलब टोड़म भट्टे को पता चल गया कि ये माला नहीं चोरी करा है नेकलेस को, अच्छा, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है। वो हाँ ऐसे। हम्म। तो तो वो डर गई और उसके हम्म। पास गई और बोलती है कि माफ करो, गलती हो गई, वापस नहीं करूंगी, मैं लालच में आ गई थी, ये वो। हम्म। तो टोड़म भट्ट तो मतलब ही इज अ वेरी सेंसिटिव मैन और हम्म। सादा सा आदमी होता है। हाँ। तो उसको पता चल जाता है कि क्या चक्कर है, ठीक है। अच्छा। तो वो बोलता है कि इतने साल तुमने नौकरी की है यहाँ पे, तो मैं हम्म। कुछ बोलूंगा नहीं इस बार, लेकिन इसके बाद अगर कुछ ऐसे हुआ इस घर में तो मैं सच सच बता दूंगा। हम्म। अभी एक काम करो तुम, कि तुम इस जगह पे बाहर, वाड़ा, वाड़ा पता है, हाँ मतलब हाँ। जैसे आंगन। मराठी इसमें वाड़ा से, नहीं नहीं, जैसे एक वाड़ा करके कॉन्सेप्ट है मराठी मेडिवल एजेस में, ये ऐसे घरों में रहते थे लोग। सो अच्छा। इट इज अ वेरी बिग हाउस। और वाड़े में ना ऐसे जल्दी से अंदर नहीं जा सकते, मतलब दरवाजे से अंदर आने के बाद पड़वी होती है। तो दैट इज ओ। अ काइंड ऑफ रिसेप्शन एरिया। तो कोई बाहर का आदमी इमीडिएटली अंदर नहीं जा सकता। तो अच्छा बाहर एक। रुकते हैं, बैठते हैं, और जैसे अभी पोस्टमैन आया है या ये लोग हैं, तो इनके लिए ऐसे रिसेप्शन एरिया काइंड ऑफ होता है। ओ। तो वहां पे ओके। कैसे, जैसे ओके, प्रियदर्शनी की मूवीज में होता था गांव में। हाँ एग्जैक्टली, है ना। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली। वो हाँ माला हाँ माल हाँ वीकली में राइट। भी सब बाहर बैठते हैं जब वो डिस्कस कर रहे हाँ होते हाँ हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ वही है, वही है, वो वही हाँ पड़वी है, हाँ। ठीक है। ओके। तो उसी उसमें वो बुझाते हैं कि वो बोलता है कि यहाँ पे रख दो इसको, ठीक है। हम्म। अभी इट इज वेरी अनयूजुअल कि औरतों के गहने रिसेप्शन एरिया में थोड़ी कोई जा सकता है ना, खो नहीं सकते वहां पे। अगर खो जाएंगे तो बेडरूम में खोएंगे जहाँ पे रखे हैं। हाँ। तो ट्रू। तो अभी ऐसे होता है कि वो बोलते हैं वहां पे रख दो और मैं जैसा बताऊंगा वैसे करो। हाँ। तो वो बोलती है ठीक है, और जाके रख देती है, ठीक आहे. ठरल्याप्रमाणे टोळंबट्ट थोड्या वेळाने माझघरात जाऊन सासऱ्याकडे म्हणाला, हम्म। तुम्ही पडवीत बैठकीखाली शोधलं का? सासरे बैठकीत बायकांचा हार कसा हार सासरे म्हणाले, बैठकीत बायकांचा हार हारवेल तरी कसा जावई बापू? टोळंबट्ट उसनं अवसान आणीत, एकदा शोधायला काय हरकत आहे पंत? जावायचा मन मारून तरी कुठे जाणार हा विचार करून सासरे पडवीकडे वळले. बैठकी धुंदाळल्या तर गाद्यांच्या फटीत पाहतात तर हार. सासरे पण हम्म। अवाक झाले. जावयाचा हेवा करायचा की किमया समजायची तेच कळेना. तो ऐसा हुआ कि वो बोलते हैं कि पड़वी में जाके गद्दे के नीचे रख दो उसको। अच्छा। और वो जाके ससुर को थोड़ी देर के बाद बोलता है कि आपने वहां पे देखा? तो ससुर बोलता है कि अरे मतलब औरतों के गहने वहां पे कैसे खो सकते हैं? अगर खो सकते हैं तो वो अंदर ही खोएंगे या तो चोरी हो गए। हम्म। तो वो वैसे झूठी मूठी अथॉरिटी के साथ वो बोलता है कि आप जाके देख के तो आइए, एक बार ढूंढिए तो सही। तो अच्छा। तो वो ठीक है, बोलता है कि अभी वो जमाई है तो जमाई का मन रखने के लिए ठीक है भाई, चलो जाके ढूंढ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, हम्म। दिखने में क्या हर्ज है। हम्म। तो वो जाता है और देखता है तो ही इज ऑस्ट्रक। तो वो हम्म। हार वो गद्दे के नीचे ही होता है, ठीक है। ओ। ओके। और उसको समझ में नहीं आता कि मैं मतलब जमाई का आई शुड बी अप्रिशिएटिव ऑफ हिम, और ये कोई जादू है। मतलब यहाँ पे लिखा ना, जावयाचा हेवा करायचा की किमया समजायची ते कळेना। ओ। तो अच्छा। मतलब हाँ, मतलब शुड ही बी इन ऑफ हिज सन इन लॉ, या फिर इसको कोई एल्केमी समझे, वो उसको मतलब ही डिड नॉट नो। ओके। तो ऐसे होता है कि अभी इसकी इमेज और बढ़ जाती है कि मतलब ससुराल वालों के नजर में, अरे भाई यार इसको तो मतलब ये तो सर्वज्ञानी इंसान है, इसको ही हैज सम स्पेशल इंट्यूशन काइंड ऑफ। हम्म। तो सब लोग बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, एंड नॉट हम्म। ओनली हिज इमीडिएट इन लॉज बट देयर रिलेटिव्स आल्सो। ओके। और बातों बातों में ही जो भी आता है, तो ये बहुत, एक तो नई नई शादी है तो जमाई को इंट्रोड्यूस करते हैं आए हुए मेहमानों से। तो हाँ। जैसे इंट्रोडक्शन करते हैं तो दोस्तों रिश्तेदारों को भी वो बताते हैं कि अरे देखो भाई, ये ऐसे ऐसे हुआ, तो 2 बार इन्होंने बता दिया करके, तो देखिए कि मतलब हाँ। हमारा जमाई कैसा है। और ये बंदा और टेंशन में आने लगता था कि साला जो भी हुआ है वो तो ऐसे ही मतलब अपने आप हो रहा है, वो तो कुछ कर नहीं रहा है। तो हाँ। इसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी बोले तो कैसे बोलेगा। हम्म। तो
ये भी चुप, और उनको तो पता था ही नहीं। तो ऐसे करके इसकी गांव में ऐसी इमेज बन गई कि अरे इनका जमाई पता है, इसने ये किया वो किया वो किया। ही बिकेम फेमस काइंड ऑफ। और कुछ दिन और गुजर गए, तो ऐसे हुआ कि उनके ससुर के जो पड़ोसी थे, उनके उनका कुछ ट्रांसपोर्टेशन का या ऐसे था। तो पहले जमाने में ट्रांसपोर्टेशन के लिए गधे यूज करते थे, कोई माल वाल भिजवाना है या कुछ करना है तो उनके कुछ 6 गधे चरने के लिए छोड़ दिए थे, तो वो गुम हो गए। तो वो टेंशन में आ गया। और एक दिन ऐसी बातों बातों में उन्होंने सुना था कि ये जमाई तो ऐसा है, इसको पता है। तो दे थॉट कि हाँ, मे बी वी कैन टेक अ चांस कि इसको पूछ ही लेते हैं, अगर हो जाए तो मदद ही हो जाएगी। तो हुआ ये कि वो लोग इनके घर पे आ जाते हैं। तो अभी घर पे आते हैं तो ससुर तो होते नहीं है। हाँ। होता उनका उसका टोड़म भट्टे का साला है, मतलब ससुर का बेटा। अच्छा। तो वो बोलता है कि हाँ बताइए क्या मदद करूं मैं आपकी। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे हमें हमें आपकी जरूरत नहीं है, मदद की जरूरत नहीं है। हमें टोड़म भट्टे से मिलना है। तो वो साला होता है, और वो भी कजिन वाला साला होता है। तो वो अच्छा। थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है कि साला, मतलब ये कल का मेहमान है, ये आज मेरे पड़ोसियों से मतलब रिश्तेदारियां बनाने लगा। वो लोग पूछने लगते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, और गधे खो गए हमारे, तो आप बता सकते हैं कहाँ पे हैं करके। तो अभी अभी इसको समझ में नहीं आता, साला मतलब एक बार हुआ, 2 बार हुआ से हर बार तो नहीं हो सकता ना, आई कैन नॉट बी लकी एवरी टाइम। लेकिन अभी करेंगे क्या। तो सोचता है और बोलता है कि मेरे को थोड़ा वक्त दे दो, मैं दोपहर को थोड़ा ध्यान वान लगाऊंगा, और उसके बाद शायद कहीं पे डायरेक्शन कोई मिल जाएगी तो मैं बता दूंगा, वैसे आप शाम को आ जाएंगे। अच्छा। तो वो शाम में आते हैं, ठीक है लोग। हाँ। और वो पूछते हैं, तो बोलते कि हाँ मैंने ध्यान किया था। तो बोलते कि आपने, तो हमारे इसमें मराठी में एक ईशान्य नैऋत्य, मतलब ईस्ट वेस्ट ऐसे, इसके लिए नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट अच्छा। वायव्य ऐसे, तो इसके लिए ईशान्य करके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होता है आई थिंक। अच्छा। तो उसको बोलता है क्या आपने नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन में ढूंढा। नाही नाही, ईशान्य म्हणजे आपल्या ओढ्याकडं. नाही नाही, तिथे कोणी पाहिलं नाही, असं काही बोललं तरी नाही. तोच टोळंबट्ट उद्गारला, तिथेच असणार. आणि अहो आश्चर्य, साहीच्या साही गाढवं तिथेच होती. घरातल्या काय पण दारातली लोकही थक्क झाली. मेहुण्याला मात्र काहीशी ईर्ष्या झाली, कारण कुठला जावई 4 दिवस दिवाळ सणाला आला आणि कौतुक घेतो वर्षभराचं. तो ऐसे होता है कि तो वो ढूंढता है वहां पे जाके, और ओढ़े के पास, मतलब जो नदी होती है ना गांव में, तो हाँ। उसके पास ढूंढा गया आपने। तो इट इज बट नेचुरल कि अभी कोई भी गधा पानी पीने के लिए वो लोग कहाँ जाएंगे, तो इट इज हाँ। तो हाँ। वो ढूंढ बोलता है कि वहां पे होगा तो वहां पे ढूंढना चाहिए आपने करके। और वहां वहीं पे सारे के सारे गधे जो होते हैं वो वहीं पे होते हैं। ओ, ओके। तो अभी अभी उसके पड़ोसी भी होता है, अरे यार इसको तो सब पता है, मतलब ही इज अ जीनियस करके। तो एंड ही फॉल्स इनटू फर्दर फिक्स कि अरे भाई, मतलब उसने अभी खुद के लिए ऐसी इमेज बना दी है ना कि ही कैन नॉट हाँ। गेट आउट ऑफ दैट इमेज। लेकिन होता ये है इससे कि उसका जो साला होता है ना, उसको उसकी ईर्ष्या होने लगती है थोड़ी सी, हाँ। कि ओके। ये साला 4 दिन का जमाई आ गया ये दिवाली के लिए, और हाँ। और साल भर की तारीफें बटोर रहा है ये। हाँ। ओके। तो और कुछ दिन बीत जाते हैं उसके बाद, और अभी उसके जाने के दिन आ जाते हैं वापस। मतलब अच्छा। ऐसे होता है ना, पहले दे पीपल यूज्ड टू स्टे फॉर लाइक 15-20 डेज और फिर जाते थे ऐसे। हाँ। तो अभी जाने के दिन नजदीक आ जाते हैं। तो टोड़म भट्टा ऐसे ही बैठा रहता है एक दिन, एंड इट इज सपोज टू बी अ हॉलीडे और समथिंग। तो सब लोग घर पे भी होते हैं, और सुबह का टाइम होता है। तो उसका जो साला होता है वो सोचता है कि साला मैं आज इसकी हेकड़ी निकाल दूंगा, ये बहुत तुर्रम खान बन रहा है ये। तो आई रीगेन माई ओल्ड रेपुटेशन ऐसे करके। तो ओके। तो घर के बाहर जाता है, और घर के बाहर से एक क्रिकेट पकड़ के लाता है। तो मराठी में क्रिकेट को टोळ बोलते हैं। ओ, ओके। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे ये होमोनिम्स वाला आया था, मतलब जैसे पहले माला माला आता था आया था, अब यहाँ हाँ। पे वापस वो टोड़ टोड़। तो और आता है, और घर में सबके सामने सबको बुलाता है, और बोलने लगता है कि आजवर जावई बापू आपल्यापासून जावई बापू दिवाळीला आल्यापासून त्यांनी या घराला केवळ आपलंच मानलं नाही, तर गावाला देखील आपलंसं करून घेतलं. गावकऱ्यांची मदत केली. त्यांच्या अकल्पित ज्ञानाने आणि दिव्य शक्तीने ते आजवर समाजाचं आणि घरच्यांचं कल्याणच करत आले आहेत. तर आज असंच मला त्यांच्या पुढे एक प्रश्न आहे. माझ्या हातात एक छोटीशी वस्तू आहे. जावई बापू एवढे अवघड प्रसंग आणि गोष्टींमधनं मार्ग काढू शकतात, तर माझ्या हातात काय आहे हे ते नक्कीच सांगू शकतील. जावई बापू, सांगा बरं माझ्या हातात काय आहे. तो इसमें ऐसा होता है कि वो बाहर से वो
क्रिकेट पकड़ के लाता है और बोलता है कि बताओ कि अभी आपने तो इतना मतलब मुश्किल मुश्किल सारे सवाल आप हल करते हो, तो मेरे हाथ में क्या है, ये छोटा सा सवाल तो आप बता ही सकते हो, मतलब आप इतनी तो आप में वो इंट्यूशन पावर तो होगी ही। तो तो अभी ऐसा होता है कि उसको समझ में नहीं आता अभी टोड़म भट्ट को कि करे क्या। इसके पहले जो कुछ हो रहा था वो अपने आप ही हो रहा था, तो उसमें तो हाँ कुछ कर नहीं रहा था वो। और अभी ऐसा होता है कि दिस इज अ रियली डिफिकल्ट सिचुएशन कि इसमें से वो निकल मतलब गलत बताएगा तो पहले जो भी उसने इमेज बिल्ड करी है वो सब खत्म हो जाएगी उसकी। हाँ तो वो सरप्राइज हो जाता है और उसको पसीने आ जाते हैं, उसकी आंखें सफेद, मतलब मराठी में से बोलते हैं कि टोळम भट्टाचे डोळे पांढरे झाले। पांढरे झाले मतलब आंखें सफेद होना इज लाइक नर्वस हो गया वो। हाँ और अंगाला घाम फुटला, तो मतलब अंगाला घाम फुटला मतलब पसीने छूटने लगे उसको। ओके ओके तो क्या करे क्या करे क्या करे। तो जैसे पहले हुआ था, तो जब ही गेट्स कंफ्यूज्ड तो वो अपने आप से थोड़ा बातें बातें करता है। तो वैसे ही वो बोलने लगा, और बोलते बोलते वो ये बोलने लगा, चुरू चुरू करितम धिरडम गणितम काया माला गदर्भ नष्टा, आता कुठं जाशील टोळम भट्टा। ओ तो ओके जैसे तो जैसे वो धीरे धीरे ये ऐसे मन में ये सब बोलता रहता है, इसको मराठी में बोलते हैं पुटपुटना। अच्छा तो तो जैसे वो टोळम भट्टा बोलता है तो हाथ में खुद खुद के हाथ में ये सब ताली दे देता है एक, अच्छा ओके और टोड़म भट्टा जोर से बोल देता है। तो तो वो जो साला होता है वो टोड़म भट्टा में से मतलब उसको सुनाई देता है। अच्छा और और वापस थाली पे वो चला जाता है हाँ अच्छा तो तो ऐसे होता है कि उसको भी समझ में आता है यार इसने पकड़ कैसे लिया मेरे को, मतलब अच्छा ही इज ऑल्सो एस्टोनिश्ड कि अरे भाई मतलब इसको तो मतलब सच में इसको इंट्यूशन पावर है करके। तो इसमें मतलब ऐसे कोई बड़ा बड़ा मॉरल एज सच नहीं है, जैसे हर हाँ स्टोरी में होता है कि अरे भाई सच बोलो, इसकी राह पर चलो, वो करो, ऐसे नहीं है। बट ऐसे थोड़ा हल्का फुल्का है, इसमें कोई ह्यूमर भी नहीं है, बट देर इज ऐसे थोड़ा लेयर्स और अंडरटोन्स की वजह से इट इज काइंड ऑफ फन। इट इज फन इनफैक्ट पता है क्या जैसे आई डोंट नो मराठी बट जब तुमने लास्ट में बोला ना उसका जो वो अंदर ही वाज मर्मरिंग दैट तो मेरे को आ गया समझ हाँ में चुरू चुरू करे तो गलत हाँ हाँ गदर वो सब मेरे को आ गया समझ में कि हाँ माला गिन रहा था गधे को ढूंढा तो इट वाज नाइस एंड और आई बोलता है थिंक आता कुठे जाशील टोळम भट्टा, तो हाँ मतलब अब क्या करेगा टोळम भट्ट ऐसे। ओके I'll use this आता कुठे जाशील आई लाइक दैट कूल बहुत ही अमेजिंग स्टोरी थी एंड जो तुमने बोला ना ऑब्जेक्टिव था बच्चों को वर्ड्स वगैरह सिखाने का वो आई डोंट नो लाइक मेरे साथ हो गया फुलफिल मुझे आ गए कुछ कुछ समझ में by the end. Thank you Vismay, thank you so much for coming and I'm sure थैंक यू people सो will मच। love this story थैंक यू सो thank मच you फॉर टेकिंग मी टू ऑल्सो माई यंगर डेज, जब भी मैं आई यूज्ड टू रीड सच स्टोरीज, तो आई रीरेड I'm दिस glad स्टोरी। एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था इसका so I'm glad कि वो हुआ and even you enjoyed the process. We would like to thank Mansi Deshpande for her beautiful cover of the song Airanicha Devatula. For more information about our podcast mini-series Solapachi Dhap, look at the episode description. Before signing off, here is another Marathi song for you. It's a love song and it is sung by Manohar Hosmani. रंग बावऱ्या स्वप्नांना सांगा रे सांगा, कुंदकळ्यांना वेलींना सांगा रे सांगा, हे भास होती कसे हे नाव ओठी कुणाचे, का सांग वेड्या मना मला भान नाही जगाचे, मला वेड लागले प्रेमाचे, मला वेड लागले प्रेमाचे, प्रेमाचे